اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے لیے تلاش علم چینل پہ سکھ مذہب کے حوالے سے بہت ہی اہم اور جامع گفتگو لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، سکھ مذہب کی بنیادی باتوں کو شروع کرنے سے پہلے ہم سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے حوالے سے، ان کے حالات زندگی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سکھ مذہب کے پہلے گرو اور بانی بابا گرو نانک ہیں۔ آپ کی پیدائش 15 اپریل 1469 کو موجودہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب میں ہوئی۔ ان کا یوم پیدائش دنیا بھر میں دیسی مہینہ کارتک میں کرپورب کے طور پر انتہائی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، گرو نانک بنیادی طور پر مسلمان تھے اور اسلام کی تعلیمات سے بے حد متاثر تھے۔ گرو نانک کے والد کا نام کلیان چند داس بیدی تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ماتا ترپتا تھا۔ آپ کی زوجہ، آپ نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی کا نام ماتا سلکھنی تھا اور ایک شادی آپ نے مسلمانوں میں کی، اور مسلمان آپ کی جو بیوی تھی اس کا نام بی بی خانم تھا۔ آپ کی 2 اولادیں ہیں، سری چند اور لکھمی داس، یہ آپ کی اولادیں ہیں۔ آپ کی بہن کا نام بی بی نانکی تھا۔ پیشہ کے اعتبار سے گرو نانک سکھ گرو تھے اور آپ کی پیشہ ورانہ زبان پنجابی تھی۔ گرو نانک نے ابتدائی تعلیم مسلمان اساتذہ سے حاصل کی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی اسلامی ممالک میں قیام کیا، بالخصوص مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بغداد شریف، ایران اور افغانستان میں سفر کیا، یہاں پہ قیام کیا، اور ان ممالک میں قیام کے دوران ہی بغداد شریف میں گرو نانک نے ایک مسلمان بزرگ حضرت مراد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی مریدی اختیار کی۔ محترم ناظرین، گرو نانک 1539 عیسوی کو کرتارپور میں فوت ہو گئے۔ اسی دوران جب آپ کی وفات ہو گئی تو مقامی سکھ، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان گرو نانک کی آخری رسومات کو ادا کرنے کے حوالے سے ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہندو اور سکھ کہتے تھے کہ گرو نانک ہمارے گرو ہیں، ہم ان کو اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق جلائیں گے، جلا کر ان کی آخری رسومات ادا کریں گے، اور مسلمان کہتے تھے نہیں، گرو نانک ہمارے پیر اور ولی ہیں، گرو نانک کو ہم اپنے مذہب اسلام کے مطابق دفنائیں گے۔ گرو نانک کی ڈیڈ باڈی جو تھی، میت جو تھی، وہ چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی اور یہ گروہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان کے جھگڑے کے دوران جب انہوں نے دیکھا کہ گرو نانک کی جو میت ہے، جو لاش ہے، وہ چارپائی پہ نہیں، غائب ہو چکی ہے، اور چارپائی پہ پھول جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد سکھوں اور مسلمانوں نے وہ پھول اکٹھے کیے، ان کو آدھا آدھا کیا، لہٰذا مسلمانوں نے اپنے مذہب کے مطابق ان پھولوں کو دفنا دیا اور سکھوں نے اپنے مذہب کے مطابق ان پھولوں کو جلا کر گرو نانک کی کرتارپور میں، جسے آج دربار صاحب کہتے ہیں، وہاں پر ان کی سمادھی بنائی۔ تو یہ تھی گرو نانک کے حوالے سے وہ مختصر سی گفتگو۔ اب اگر بات کی جائے سکھ مذہب کے حوالے سے، محترم ناظرین، اس وقت پوری دنیا کی کل آبادی 7 ارب 34 کروڑ 94 لاکھ اور 72 ہزار ہے۔ اس وقت دنیا میں کل 4200 مذاہب موجود ہیں، اور تعداد کے لحاظ سے سکھ مذہب پوری دنیا کا 6واں بڑا مذہب ہے۔ سکھ مذہب کے پیروکاروں کی کل تعداد 2 کروڑ 70 لاکھ کے قریب ہے۔
मोहतरम नाजरीन, सिख मजहब की इब्तिदा 15वीं सदी के आखिर में हिंदुस्तान में पंजाब में हुई। सिख मजहब के पैरोकारों को सिख या सरदार कहकर पुकारा जाता है। सिख मजहब की इबादत गाह को गुरुद्वारा कहा जाता है और सिख मजहब में जो मजहबी रहनुमा हैं जो इस मजहब की तालीमात का प्रचार करते हैं उनको गुरु के नाम से जाना जाता है। अब अगर बात की जाए, सिख मजहब में 10 बड़े गुरु मौजूद हैं। सिख मजहब के सबसे पहले गुरु जो हैं वो गुरु नानक हैं, जो कि ननकाना साहब में पैदा हुए और इनकी वफात करतारपुर में पाकिस्तान में हुई। सिख मजहब के दूसरे गुरु गुरु अंगद हैं, जिनकी वफात खदूर साहब में अमृतसर इंडिया में हुई। सिख मजहब के तीसरे गुरु गुरु अमरदास हैं, जिनकी वफात गोइंदवाल साहिब में पंजाब में 95 साल की उम्र में हुई। सिख मजहब के चौथे गुरु गुरु रामदास हैं, जिनकी वफात गोइंदवाल साहिब पंजाब में 46 साल की उम्र में हुई। अब अगर बात की जाए सिख मजहब के 5वें गुरु गुरु अर्जन की, तो वो उनकी वफात मौजूदा पाकिस्तान में लाहौर में 43 साल की उम्र में हुई। और छठे गुरु सिख मजहब के गुरु हरगोबिंद हैं, जिनकी वफात कीरतपुर साहिब इंडिया में 48 साल की उम्र में हुई। सिख मजहब के 7वें गुरु गुरु हर राय, जिनकी वफात कीरतपुर साहिब पंजाब इंडिया में 31 साल की उम्र में हुई। सिख मजहब के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब हैं, जिनकी दिल्ली में 7 साल की उम्र में वफात हुई। सिख मजहब के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी हैं, जिनकी वफात दिल्ली में 54 साल की उम्र में हुई। सिख मजहब के 10वें और आखिरी गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह देव जी हैं, जिन्होंने हुजूर साहिब महाराष्ट्र इंडिया में 41 साल की उम्र में विसाल फरमाया। सिख मजहब के ये 10 गुरु हैं जिनको सिख मजहब के 2,70,00,000 अफराद पैरवी करते हैं, मानते हैं। अब अगर बात की जाए सिख मजहब की मुकद्दस किताब की, तो सिख मजहब की मुकद्दस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है, जो पंजाबी जुबान में है। इस किताब को गुरु अर्जन समेत ये जो 10 गुरु हैं सिख मजहब के, इन तमाम गुरुओं ने लिखा और 1604 ईस्वी में इस किताब की पब्लिशिंग हुई और ये छपी। अब अगर बात की जाए सिख मजहब के तमाम मुकद्दस मुकामात की, जिनको आज सिख कम्युनिटी जो है वो इज्जत की निगाह से देखती है, उनमें से पहला मुकाम करतारपुर साहिब, जिसे दरबार साहिब कहते हैं, मौजूदा पाकिस्तान पंजाब में मौजूद है। सिख मजहब का दूसरा मुकद्दस मुकाम गुरुद्वारा श्री गुरु अंगद देव जी है, ये अमृतसर इंडिया पंजाब में है। तीसरी मुकद्दस जगह सिखों की वो गुरुद्वारा जन्म स्थान गुरु अमरदास है। गुरुद्वारा जन्म स्थान गुरु रामदास लाहौर पाकिस्तान में है। गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर पाकिस्तान में है। गुरुद्वारा कीरतपुर साहिब इंडिया में है। गुरुद्वारा गुरु हर राय साहिब इंडिया में है। गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब अमृतसर इंडिया में मौजूद है, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारा हुजूर साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा ननकाना साहिब मौजूदा पाकिस्तान में मौजूद है और गुरुद्वारा पंजाब साहिब मौजूदा पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये सिख मजहब की वो मुकद्दस मुकामात हैं जहां पर पूरी दुनिया से सिख कम्युनिटी इकट्ठी होती है और अपनी रसूमात की अदायगी के लिए, अपनी इबादत के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और अपने गुरुओं की ज़ियारत करते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर बात की जाए उन ममालिक की जिन ममालिक में इस वक्त सिख मौजूद हैं और अपने मजहब का प्रचार कर रहे हैं, उनमें भारत पंजाब में सिख कम्युनिटी मौजूद है, पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी मौजूद है, बांग्लादेश में सिख कम्युनिटी मौजूद है, अमेरिका में सिख कम्युनिटी मौजूद है
ऑस्ट्रेलिया में और यूएई में, नॉर्वे में, स्वीडन में, कनाडा में और नेपाल में सिख मजहब के पैरोकार मौजूद हैं। अब अगर बात की जाए सिख मजहब के अहम त्योहारों की, जो त्यौहार सिख मजहब के फॉलोअर सेलिब्रेट करते हैं, उनमें सबसे पहला त्यौहार बैसाखी का है जिसको सिख मजहब के फॉलोअर मनाते हैं। दूसरा त्यौहार नगर कीर्तन है। तीसरा त्यौहार बंदचोर दिवास है। चौथा त्यौहार होला महल्ला है और पांचवा त्यौहार गुरपूरब है। इन तमाम त्योहारों को पूरी सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया में जहां जहां पे आबाद हैं वो बड़े मजहबी जोश जज्बे और अकीदत के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और मोहतरम नाजरीन, सिख मजहब जिस तरह इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, इसी तरह सिख मजहब के भी 5 बेसिक्स चीजें हैं, जिसमें पहली चीज सिख मजहब के ये है कि सिख बाल कटवाने को अच्छा नहीं समझते, वो बाल नहीं कटवाते। दूसरी चीज, हर सिख अपने पास कंघा रखता है अपने बालों को संवारने के लिए। तीसरी चीज, कड़ा, हर सिख जो है वो कड़ा पहनता है। चौथी चीज, किरपान यानी चाकू है। हर सिख और सरदार अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास चाकू रखता है। और पांचवी चीज, कच्छा, ये भी उनकी मजहबी अरकान है जिसको हर सिख अपनाता है। अब अगर सिख मजहब की खसूसियात और बुनियादी बातों की बात की जाए तो सिख मजहब के लोग भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं और एक ही खुदा को पूजते हैं। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है। सिख मजहब में बुत परस्ती नहीं की जाती। और इसके साथ साथ सिख मजहब में अवतार का फलसफा भी नहीं है जो हिंदू मत मजहब में पाया जाता है। इसके साथ साथ सिख मजहब के अंदर अगर कोई सिख मरता है और उसकी डेथ होती है तो सिख अपने मजहब के मुताबिक हिंदू मजहब की तरह उस मरने वाले मुर्दे को जलाते हैं। और यूं ये सिख मजहब के हवाले से बुनियादी मालूमात थी जो आपके हुजूर गोशगुजार की। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि हमारी ये काविश ठीक है, जो अवेयरनेस हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के हवाले से, इल्म के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो हमारे चैनल तलाश इल्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।